ওম শান্তি। আজকে বাবার 2-1-2021 মুরলি। আজকে মুরলির বিশেষ মহাবাক্য যে বাবা বলছেন যে যদি বাবারকে তুমি খুব সম্মান করো, বাবার যদি রিগার্ড রাখতে চাও, তাহলে সবথেকে বড় রিগার্ড হচ্ছে যে বাবার মুরলি একদিনও মিস করো না। তো যাদের মুরলির প্রতি ভালোবাসা, তার মানে তারা মুরলীধরকেও ভালোবাসছে। তারপরে বাবা বললেন যে তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা রাজি খুশিতে আছো, তখন তোমাদের কি জবাব দেওয়া উচিত? তো বাবা বলছেন তোমরা খুব নেশাতে বলো, আরে আমরা ভগবানের সন্তান, স্বয়ং ভগবান আমাকে পড়াচ্ছে এবং আমাদের মানে যে চাহিদা ছিল সেটা ছিল ঈশ্বরকে পাওয়া। তো ওনাকে যখন পেয়ে গেছি যে পার ব্রহ্মে থাকে, এখন আর কিসের চিন্তা? তো আমাদের খুশির কথাই জিজ্ঞেস করো না, আমরা এত খুশিতে আছি যে খুশির পারাবার সবসময় চড়ে আছে। তারপরে বাবা বললেন যে বাচ্চাদেরকে সবসময় নেশা থাকা উচিত যে তোমরা ভগবানকে বাপ, টিচার, সদ্গুরু রূপে পেয়েছো। বাবা বাপ, টিচার, সদ্গুরু হয়ে তোমাদের পালনা করছেন, সেবা করছেন। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে বাচ্চাদেরকে রোজ বলা হয় যে তোমরা চার্ট রাখো, চার্ট রাখো, কিন্তু বাচ্চারা এটার উপরে কোনো নজরই দিচ্ছে না। সবাই জানে যে চার্ট রাখলে আমার উন্নতি হবে, কিন্তু বাবা বলছেন এতগুলো বাচ্চাদের মধ্যে মাত্র 2% বাচ্চারাই হয়তো এরকম আছে যারা চার্ট রাখে। তারপরে বাবা বললেন যে তোমাদের কদম কদমে পদম আছে, তোমরা সেকেন্ড সেকেন্ড এখন যা পুরুষার্থ করছো, তো তোমাদের পদম গুণা প্রাপ্তি আছে। এই জন্যে দেবী দেবতাদের পায়ে পদ্মের চিহ্ন দেখানো হয়, মানে বা কমল ফুলের চিহ্ন দেখানো হয়। তারপরে বাবা বললেন যে এখনকার যারা সন্তান তারা তো এটা চায় যে আমার বাবা কখন দেহ রাখবে তো আমরা প্রপার্টি পাবো, বা যদি কারো বাবা রাজা হয় তাহলে সে রাজকুমার ভাববে যে কবে বাবা দেহ রাখলে আমি রাজা হব। কিন্তু সত্যযুগে এসব কোনো ব্যাপার থাকে না। সেখানে মাতা পিতা যখন সময় হবে তখন ঠিক সন্তানকে রাজত্ব দিয়ে তারা সাইড হয়ে যায় বা কিনারা করে নেয়, কিন্তু সেখানে কেউ বানপ্রস্থে যায় না বা সন্ন্যাসী হয় না। তো এরকম বাবা খুব সুন্দর সুন্দর পয়েন্টে আজ আমাদের সাজিয়েছেন। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি বিস্তারিতভাবে শুনব। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना, मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। বাবা বলছেন বাবার শ্রীমতের রিগার্ড যদি তোমরা রাখতে চাও তাহলে কখনো মুরলি মিস করবে না এবং বাবার প্রত্যেক আজ্ঞাকে পালন করবে। আজকের প্রশ্ন, अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? বাবা বলছেন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে রাজি খুশি আছো, তাহলে তোমরা কি একটা জবাব খুব গর্বে দেবা, গর্ব সহিত দেবা? তখন বাবা উত্তরে বলছেন, बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? বলছে তোমরা বলবে যে চিন্তা ছিল যে পার ব্রহ্মে আছে তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাকে পাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাকে পেয়ে গেলাম তো আর কি চাই? पाना था सो पा लिया, तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। বাবা বলছে তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, তোমাদের কোনো রকম চিন্তা নেই। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। বাবা আজকে আমাদেরকে মনে করাচ্ছেন যে তোমরা বাবাকেও পেয়েছো, টিচারকেও পেয়েছো আর সুপ্রিম গুরুকেও পেয়েছো। তো বাবাই এসে কল্প কল্প আমাদেরকে জ্ঞান দিচ্ছেন। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो यह अब समझा जाता है
जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भल समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। बाबा बोलছেন যে বাচ্চারা বাবাকে পিতা রূপেই ভুলে যায়, তাহলে টিচার বা গুরু রূপে কি করে মনে করবে। তো মায়া এত প্রবল আছে যে বাবার এই তিনটে রূপকেই ভুলিয়ে দিচ্ছে, অথচ তিনটে রূপেরই মহিমা আছে, তিনটে সম্বন্ধেই এত প্রাপ্তি আছে, প্রালব্ধ আছে, শক্তি আছে, তাও মায়া ভুলিয়ে দিচ্ছেন। তাই বাবা বলছেন যে মায়া এত সর্বশক্তিমান, इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच इसमें गपोड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते ना। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। बाबा बोलছেন যে দেবতাদেরই পায়ে পদমের চিহ্ন দেখানো হয়, মানে পদ্ম ফুলের চিহ্ন দেখানো হয়, মানে তোমাদের এখন কদম কদমে পদম। তো সেটা এখন তোমরা কদম কদমে মানে প্রত্যেক স্টেপে, প্রত্যেক সেকেন্ডে, প্রত্যেক সংকল্প দ্বারা বাবাকে ইয়াদ করে তোমরা যে এত ইনকাম করছো, এত ঈশ্বরীয় প্রালব্ধ বানাচ্ছো, তাই দেবতাদের পায়ে পদ্মচিহ্ন দেখানো হয়। तो सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की यह पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की यह पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच ते ऊंच एक बाप हैं, बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা রোজ দিন বলে আমাদেরকে যে নিজে চার্ট লেখো, তাও আমরা লিখি না। अगर लिखते भी हैं तो जांच करते, 2 घंटा याद में रहे फिर वह भी उन्हों को मालूम पड़ता है। जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं, बाप तो समझेंगे। इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। বাবা বলছেন যে বাচ্চারা চার্ট লেখে না, তার মানে বাবা বুঝে নেয় যে এদের নিশ্চয়ই লজ্জা লাগছে, তাই এরা চার্ট লেখে না। श्रीमत नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। বাবা বলছেন এতগুলো বাচ্চার মধ্যে মাত্র 2% বাচ্চারা চার্ট লিখছে। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता जरूर होगा। बाबा कहते तो सच हैं। बाबा बोलছেন যে বাচ্চাদের শ্রীমতের এত রিগার্ড নেই, মুরলি হয়তো পাচ্ছে অথচ রোজ দিন পড়ে না। তো দিলে তো লাগছে যে বাবা যা কিছু বলছে সত্যি বলছে। हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। আমরা নিজেরা যদি মুরলি না পড়ি তাহলে অন্যকে কি বোঝাবো। याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया,
पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया। बाबा বলছেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তো এটাতে যে বাবা সেটাও মনে চলে আসবে এবং বাবার পড়াটাও মনে চলে আসবে। सदगति दाता भी आ गया, थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। तो बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है, तकदीर में नहीं है। तदबीर तो बाप कराते ही है ना, तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं, यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, यहाँ तो सबको पढ़ाते, कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। बाबा बोलছেন যে লৌকিক পড়াশোনাতে কি হয়, যদি কেউ বড় লোকের ছেলে হয় বা সন্তান হয় তো তাকে স্পেশাল পড়ানো হয়, মানে সবাই জানে যে এটা ডাল মাইন্ড, তখন তাকে होशियार বানানোর জন্য ভালো টিচার দেওয়া হয়। तो यह बाप ऐसे नहीं करते हैं, यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। বাবা বলছে আমি সেরকম করি না, আমি তো সবাইকে একরকমই পড়াচ্ছি। तो वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं हैं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা এখানে কাউকে এক্সট্রা পুরুষার্থ করায় না, কিন্তু লৌকিক পড়াশোনাতে মাস্টাররা স্পেশাল পড়াই করায়, তো মানেই হচ্ছে তারা স্পেশাল কৃপা করছে। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है यह तो समझते हो, बाप ही पतित पावन है। जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। বলছে তোমরা কম যদি স্মরণ করো তাহলে কম পদ পাবে, যদি বেশি স্মরণ করো তাহলে বেশি पद पावे। तो बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा हैं। ढेर मंदिर बने हुए हैं ना, বলছে মন্দিরে ভক্তরা দেবী দেবতাদেরকে কি বলে যে আপনারা পুণ্য आत्मा, আমরা पाप आत्मा। तो वहाँ सब क्या करने जाते हैं, दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। বলছে দর্শন করলে লাভ তো কিছুই হবে না, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावें, इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है ना, जैसे और त्यौहार मनाते हैं वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं। বাবা বলছেন কি যেমন ভক্তি মার্গে অনেক রকম यात्रा करे, तो ठीक से रकम भक्ति मार्गेर यात्राकेই তারা त्यौहार मेने নেয়। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्यौहार समझते हो, तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वह भी कहते
वह यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। तो बाप ही आकर यह यात्रा सिखलाते हैं। वह चारों धाम जन्म बाय जन्म यात्रा करते, यह तो बेहद का बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते कि याद की यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा बोलছে যে কেউ বলে না যে यादेर यात्राয় তোমরা पावन হবে, একমাত্র বাবাই এটা বলছেন। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वह उस समय पावन रहते हैं। বলছে মানুষ যখন তীর্থযাত্রায় যায় তখন সে কিছুদিন তারা पवित्रताকে मेंटेन करे। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वह यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। বলছে ভক্তি মার্গের ওরা যাত্রা করে তীর্থযাত্রা, তো আবার তীর্থযাত্রা থেকে যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন সেই রকমই তারা পতিত কাজ আরম্ভ করে দেয়। তো বাবা বলছেন এই জন্যে বলা হয় যে চারো ধাম চক্র লাগিয়েছে কিন্তু তাও মনের অন্ধকার दूर হয়নি। तो चक्र लगाते रहते हैं। जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, तो यह भी चक्र लगाते हैं ना। गीत में भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। এই জন্যে ভক্তি মার্গে একটা গান বানানো আছে যে চারিদিকে চক্কর লাগানো হলো তাও ঈশ্বর থেকে সবসময় দূরেই থেকে গেল। तो भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला ही नहीं। तो বলছে ভক্তি মার্গে তোমরা চার ধামের यात्रा করেও তোমরা ভগবানকে পেলে না। ভগবান से दूर ही रहे। মানুষ কত জঙ্গলে বনে হিমালয় নদীতে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাধনা করছে যে ভগবান সেখানে হয়তো প্রাপ্ত হবে। কত মানে একদম যেটা দুর্গম রাস্তা সেখানেও যায়, কঠিন রাস্তা সেখানেও যায় তারা, সেখানেও সাধনা করে কিন্তু ভগবানকে তো পায়নি। तो भगवान से दूर ही रहे, भगवान कोई को मिला नहीं। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। तो वह सब यात्राएं हैं झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि बाप आए हैं, एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे? अच्छा एक दिन सबाई भगवान के पावे किंतु की भावे यह तो कोई भी जानते नहीं। यह तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म नहीं होता। বলছে তোমরা তো ভারতবর্ষেরই নাম নেবে, কেন সত্যযুগে তো অন্য কোনো ধর্ম বা অন্য কোনো খণ্ড দেশ থাকবেই না। तो सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। तो बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण हो। यह हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थार्थ मैं आत्मा, फिर हम आत्मा, ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। বলছেন ভক্তি মার্গে আত্মাকেই পরমাত্মা, পরমাত্মাকেই আত্মা বলে দেওয়া হয়েছে। একটাও মানুষ এরকম নেই যার মধ্যে এটা হংস বা সোহমের জ্ঞানটা আছে। তো বাবা এটা বলেছেন যে এটা আমাদের জন্য, যে আমরাই ব্রাহ্মণ, তারপরে আমরাই দেবতা, আবার আমরাই এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। তো ব্রাহ্মণ সো দেবতা
দেবতা সো ব্রাহ্মণ, কিন্তু ওরা বলে দিয়েছে आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। বলছে যদি সৃষ্টি কালচক্র বুদ্ধিতে না ঘুরবে তাহলে চক্রবর্তী রাজা তোমরা কি করে হবে। अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। यह तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, यह ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। বলছেন বাবাকে বীজ রূপ জ্ঞানের সাগর বলা হয়। वह इस चक्र में नहीं आते हैं, ऐसे नहीं हम जीव आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে নিজের মতন মাস্টার জ্ঞানের সাগর বানাচ্ছি, নলেজফুল বানাচ্ছি, কিন্তু আমি তোমাদেরকে গড বানাতে পারি না। কেন? গড তো একজনই হয় যার জন্ম নেই মৃত্যু নেই, কিন্তু আমরা প্রত্যেক আত্মা जन्म मृत्युर चक्करे आसছি। तो इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है, नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते। उन स्कूलों में जब इम्तहान होते हैं तो पेपर्स बिलायत से आते हैं। बाबा बोलছেন যে এখানে পড়াশোনা আছে কিন্তু কোনো পরীক্ষা নেই। এটা না যে তোমাদেরকে 4-5টা পাতা দিয়ে বাবা বলবে যে তোমরা এবার পরীক্ষা দাও। তো বাবা বলছেন অন্য স্কুলে তো এক্সাম হয় আর সেই পেপারস অনেকটাই বিদেশ থেকেও তৈরি হয়ে আসে। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकालते होंगे। বাবা বলছেন যারা বিদেশে পড়াশোনা করে তো তাদের পরীক্ষাও বিদেশে হয়, পরীক্ষা বিদেশে হলে সেখান থেকে রেজাল্ট আসবে। तो उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। বা তাদের মধ্যেও কেউ বড় অথরিটি হয়, সে তাদের যে পরীক্ষা দেওয়া হয়েছে সেটাকে তারা যাচাই করে। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे, तुम खुद ही करेंगे। বলছে তোমরা নিজের যাচাই নিজেই করো। खुद को जो चाहो सो बनाओ। বলছে নিজেকে তোমরা যা ইচ্ছা সেরকম তোমরা পদ দাও, সেরকম তোমরা ডিজাইন দাও, সেরকম তোমরা নাম্বার দাও। तो पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना क्या बनेंगे, देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे। तो जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा भी बनानी है। বাবা বলছেন যারা সার্ভিসেবল বাচ্চা তারা সবসময় কি ফিল করবে যে আমাদেরকে প্রজা বানাতে হবে, আমাদেরকে নিজের রাজধানী স্থাপন করতে হবে। तो उसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिनको अक्कल कम होता है। বাবা বলছেন মন্ত্রীর প্রয়োজন তাদের হয় যাদের বুদ্ধি কম থাকে। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। বলছে সেখানে তোমাদেরকে কারো থেকে রায় পরামর্শ নেওয়ার দরকার থাকবে না, সত্যযুগে কোনো মন্ত্রী পদ থাকবে না। तो बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं,
पैसे का क्या करें, धंधा कैसे करें। बाबा कहते यह दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। অনেকেরা বাবার কাছে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করে যে বাবা কিভাবে ব্যবসাকে বাড়াবো, পয়সা আছে তার কিভাবে কি করব। তো বাবা বলছে এরকম সাংসারিক কথাবার্তা বাবার কাছে নিয়ে আসা এটা উচিত নয়, বা বাবার সঙ্গে এরকম কথাবার্তা বলাটাও ঠিক নয়। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त न बन जाए तो कुछ न कुछ आथत देकर बता देते हैं। আবার বাবা এটাও দেখছেন যে যদি আমি কোনো জবাব না দিই তাহলে বাচ্চা উদাস হয়ে যাবে, নিরাশ হয়ে যাবে, এই জন্য তখন বাবাকে একটু বলতে হয়। यह कोई मेरा धंधा नहीं है। বাবা বলছে যে কারো ব্যবসা কিভাবে চলবে তো এইসব বলা এটা কোনো আমার কাজ নয়। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो, तुमको मिलती है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में है आसुरी मत, तो वह है ही सुख धाम। বাবা বলছেন যে কলিযুগে চারিদিকে আসুরি মত মানে অসুরের মতে সবাই চলছে, আর সত্যযুগে হচ্ছে বাবার দেওয়া শ্রীমত অনুসার আমরা ওখানে চলছি, তো সেটা হচ্ছে সুখ ধাম। আর কলিযুগে সবাই আসুরি মতে চলছে তাই এটা দুঃখ ধাম। तो वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबियत ठीक है। বলছে সত্যযুগে কেউ এটা কাউকে জিজ্ঞেস করবে না যে তোমরা রাজি খুশি আছো, তোমাদের শরীর ঠিক লাগছে। यह अक्षर वहाँ नहीं होते, यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है। তো বলছে এগুলো এখানে জিজ্ঞেস করা হয় যে তোমার কোনো কষ্ট নেই তো, হালচাল ঠিক আছে তো, राजी खुशी हो, इसमें भी बहुत बातें आ जाती हैं। বলছে এটাতেও অনেক রকম কথা চলে আসছে। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। বলছে সত্যযুগে দুঃখ থাকবেই না যে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করবে। तो यह है ही दुख की दुनिया, वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। বাবা বলছে মায়া তোমাকে নিচে ফেলার জন্য নানান রকম চেষ্টা করবে, কিন্তু তোমরা তো বাবাকে পেয়েছো। तुम कहेंगे क्या, तुम खुश खैरापत पूछते हो, हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैरापत पूछते हो। বাবা বলছেন যে তোমরা তাদেরকে বলো যে আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান, আমরা যদি রাজি খুশিতে না থাকবো তাহলে আর কে থাকবে, তো আমাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করার দরকার নেই যে তোমরা রাজি খুশিতে আছো। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया फिर किसकी परवाह। বলছে তোমাদের চিন্তা ছিল যে পার ব্রহ্মে আছে তাকে পাওয়ার, তো তাকে পেয়ে গেছো, আর কিসের চিন্তা। यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब तक हम पावन नहीं बनेंगे तब तक लड़ाई शुरू नहीं होगी, पावन बन जाएंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी हैं। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो, तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो। বাবা বলছেন যে তোমরা তো সত্যযুগ থেকেও বেশি খুশি এখানে আছো, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है तो हमको इतना लायक बनाते हैं, तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह, वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। बाबा আমাদেরকে তো নেশা চড়াচ্ছেন যে তোমরা তো সত্যযুগে ডবল তাজধারী হচ্ছ, ভগবান স্বয়ং তোমাকে পড়াচ্ছেন, বাপ टीचर सदगुरु रूपे তোমার সেবায় আছেন, আর কি চাই। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है, बाप नहीं ताज रखते,
यह भी तुम जानते हो, सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी। कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। बाबा बोलছেন যে কলিযুগে তো ছেলেরা কি ভাবে যে যখন কখন আমার বাবা দেহ রাখবে তো আমি ताजधारी हब। आस होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर दे लेते हैं। बोलছেন सत्ययुगे खूब नियम अनुसारे ठीक टाइमे बाबा तार सन्तान के राज सिंहासनेर भार दिए निजेरा तारा वानप्रस्थे चले जाए। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा नहीं होती। वानप्रस्थ माना तारा कोनो सन्यासी होबे ना बा वानप्रस्थे चले जाबे ना, किन्तु तारा बाच्चादेरके दायित्व दिए निजेरा किनारा करे नेय। तो बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती हैं। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज के धारणार मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। 2 नंबर, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज के वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती है। आत्माओं का आवाहन कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। बाबा बोलছেন যে যোগের মাধ্যমে সাইলেন্স শক্তির মাধ্যমে বাপ দাদার সঙ্গে একদম ক্লিয়ার কানেকশন বা রিলেশন রাখা যায়, এটাকেই যোগবল বলা হয়। বা এই যোগবল দ্বারা যারা স্থূলভাবে দূরে আছে সে আত্মাগুলোকেও ডেকে তাদেরকে শক্তি বা তাদের সংস্কারকে পরিবর্তন করা যেতে পারে। তো বাবা সেটা সূক্ষ্ম সেবা, এর জন্যে একাগ্রতার শক্তিকে বাড়াও।
আজকের স্লোগান, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा हैं। বাবা বলছেন নিজের সমস্ত ঈশ্বরীয় খাজানাকে যে সফল করে দেয় সেই হচ্ছে মহাদানী আত্মা। ওম শান্তি।